I'm your friend who is here to help you out with all your problems related to economics. This is the first video of my channel which is based on the topic basic concepts of macroeconomics. This is the second chapter of class 12th economics course, and I'm going to make 3 videos on this in such a way that you guys can understand it well. So let's begin. Classification of goods is the first topic of this chapter, and generally goods are divided into two differentiation types. First one is the final goods and intermediate goods differentiation, and second one is the consumption goods and capital goods differentiation. We all are just like this kid who is sitting and relaxing because we all think that economics is a theoretical subject and we can gulp it before the exams. But the reality is economics is more of a practical subject than a theoretical subject. And we understand this just before our exams when we really start studying. And then the fear of economics gets stuck in our mind. And being you all my viewers, I want you to know that the main objective of this channel is to remove this fear from all students' mind, or you all will just run away like this boy after seeing your books. The stuff that I teach you well, so that the stuff don't flies in your mind from your mind just like this bird of origami. Now just gets into the differentiation of intermediate goods and final goods. Guys, intermediate goods are an easy one. Remain within the boundary or line of production. According to me, the term boundary line of production is very easy. Boundary line of production means the area within the production process, such as production process can be defined as the value addition process. So the intermediate goods are a part where all the value in them is not added. Second point, these may be used as raw material or resold after adding some value. Just like food grains are used as a raw material in many manufacturing industries. Third point, expenditure on these are known as intermediate cost. The term intermediate cost is the cost or the expenditure on the intermediate goods. That's too easy to understand. Point, these are not included in the estimation of national product or national income. This is because that if we will include intermediate goods in the estimation of national product or income, then their value added final goods will duplicate them and it will become a double duplication. So गाइस ये सिर्फ इसलिए होता है कि डबल डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम ना हो. डबल डुप्लीकेशन मतलब हम इधर भी काउंट कर लेंगे और फिर फाइनल गुड के साथ भी काउंट कर लेंगे, तो हमारी जो जीएनपी या जीडीपी आएगी वो ज़्यादा आएगी जो एक्यूरेट नहीं होगा. इसलिए हम इसे बस एस्टिमेशन में काउंट नहीं करते. अब अपन आते हैं फाइनल गुड्स पे. आउटसाइड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. वो एक लाइन होती है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि वो लाइन होती है जहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है. तो आउटसाइड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि अब उस गुड में कोई भी वैल्यू ऐड करनी नहीं बची है. मतलब एक प्रोड्यूसर का काम उस गुड पे ख़त्म हो चुका है. अब जो भी है वो गुड एक कंज्यूमर के लिए है. सेकेंड पॉइंट, these are neither used as raw material nor resold by firms. ये ऐसे गुड्स होते हैं जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं होते हैं और कोई भी फर्म इन्हें रीसोल्ड नहीं करती है. मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल वैल्यू एडेड गुड्स होते हैं. ऐसे गुड्स जिनमें कोई और वैल्यू ऐड हो ही नहीं सकती, तो ये रॉ मटेरियल तो बन नहीं सकते. और रीसोल्ड जब भी हम किसी गुड को करते हैं तो उसमें कोई वैल्यू ऐड करके करते हैं, और जब हम किसी गुड में कोई वैल्यू ऐड कर ही नहीं सकते तो उसको रीसोल्ड करना तो बनता ही नहीं है ना गाइस. थर्ड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन दीज आर नोन एज द फाइनल एक्सपेंडिचर. फाइनल एक्सपेंडिचर का ये मतलब होता है जो कंज्यूमर करता है. एक एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर करता है अपने गुड पे. दो तरीके का होता है ये, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो होता है वो कंज्यूमर्स करते हैं, कंजम्पशन जिसे कहते हैं. और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर करता है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है मशीन्स में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है फूड प्रोडक्ट्स में, और इन दोनों को प्लस करके बनता है फाइनल एक्सपेंडिचर. मतलब जो फाइनल गुड्स पे
पैसे आते हैं या आप कह सकते हो जो खर्चा होता है वो होता है फाइनल एक्सपेंडिचर। फोर्थ पॉइंट, इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था कि जैसे कोई रॉ मटेरियल है वो 10 रुपये का है और उसमें मैंने वैल्यू ऐड की 10 रुपये की, तो अगर मैंने पहले ही उस रॉ मटेरियल को 10 रुपये काउंट कर लिया होता वहाँ पे, तो हमारा जीडीपी लास्ट में आ जाता है 10 + 20 30, जो गलत होता। अब फाइनल गुड्स में क्या होता है, सिर्फ फाइनल गुड की जो अमाउंट होती है वो काउंट होती है, तो 20 काउंट होगी। मतलब 10 तो उस रॉ मटेरियल का और 10 जो मैंने वैल्यू ऐड किया उसका, तो अब हमारी जीडीपी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। गाइस मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं थिंक कर रहा हूँ कि आपको ये सब कुछ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। गाइस अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है डिफरेंशिएशन बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स गाइस वो गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर खरीदता है। पहला पॉइंट जैसा आप देख सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स का मतलब है कि किसी इंसान की जो डिमांड होती है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई करना। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं एज अ कंज्यूमर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मैगी खाऊं और मैं मैगी ख़रीदता हूँ, तो अगर मैं मैगी ख़रीदता हूँ तो डायरेक्टली मेरी डिमांड को फुलफ़िल करती है, तो वो एक कंजम्पशन गुड हुई। सेकेंड पॉइंट, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज। गाइस ये ईजी है। जैसे अगर मैं अपनी पूरी कम्युनिटी की बात करूँ कंज्यूमर्स की, तो उन्हें नॉर्मली इकोनॉमिक टर्म्स में हाउस होल्ड्स गिना जाता है। तो जब हाउस होल्ड से कंज्यूम करते हैं उससे पहले वो उसे खरीदते हैं, तो मेनली हाउस होल्ड्स आर द purchasers of the consumption goods. That's easy. Expenditure on consumption goods is called as consumption expenditure. लास्ट टाइम जब हम फाइनल गुड्स देख रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि उसमें दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं जिनमें प्लस करके फाइनल गुड्स आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें जो एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता था वो यही है। और अब जो फोर्थ पॉइंट है इसका वो है हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लेड टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। इट रेजेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये कैसे है, जैसे अगर मैं कंजम्पशन गुड्स की बात करूँ तो वो हुआ हाउस होल्ड, मतलब कोई घर खरीदना। अब मैंने कोई घर खरीदा तो वो डायरेक्टली मेरी घर लेने की वांट को फुलफ़िल कर रहा है, तो अब वो एक तरीका है मेरी वांट पूरी करने का। और उसी के साथ अगर नॉर्मल लोगों को घर मिलता है तो हायर लेवल ऑफ वेलफेयर इसको गिना जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ती है और अगर सबकी वांट्स फुलफ़िल हो रही हैं एक इकॉनमी में, तो वो एक मतलब आप कह सकते हो प्रोग्रेसिव इकॉनमी है। अब आप कैपिटल गुड्स देखें तो कैपिटल गुड्स इससे थोड़े अलग होते हैं। ये डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते ह्यूमन वांट्स। जैसे कैपिटल गुड में आप आ सकती है आपकी मशीन। मशीन डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करती ह्यूमन वांट्स को। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप एक प्रिंटेड अगर शीट आए और आपके पास मशीन है प्रिंटर, तो आपको डायरेक्टली अगर आप प्रिंटर लो तो वो आपको शीट नहीं देता। लेकिन जब आप उसमें अपने सारा अपना भरो कि आपको क्या चाहिए, तब आपको एक शीट मिलती है आउटपुट के रूप में। तो उसी तरह जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो एक तरीके का प्रोसेस रन करते हैं अपने अंदर जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है। इसी का जो सेकंड पॉइंट है, दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड्स, इंस्टेड दीज आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। मतलब जैसे हाउस होल्ड डायरेक्टली ये नहीं खरीदते, जो लोग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैगी का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ बहुत सारी मशीन्स यूज़ होती हैं, वो डायरेक्ट सेटिस्फाई नहीं करती वांट्स, लेकिन उनकी वजह से ही हमारी वांट सेटिस्फाई होती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स उनके बिना शायद मैगी ना बना पाए। थर्ड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था फाइनल गुड्स में कि दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये दोनों अगर हम कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स को मिलाएं तो ही फाइनल गुड्स बन जाते हैं हमारे। फोर्थ पॉइंट, हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकॉनमी। अगर मैं आपको कहूँ कि कैपिटल गुड्स का मतलब मशीनरी और बहुत सारी मशीनरी प्रोड्यूस हो रही है, तो आप ये मानोगे कि हमारे पास बहुत सारी मशीन्स हैं और सामान प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारी जो इकॉनमी है उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई ना हमारी। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक मशीन से आप 20 चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो, और मैंने कह दिया अचानक से इकॉनमी में 100 ज़्यादा मशीनें आ गई हैं, प्रोड्यूस हो गई हैं, तो आप उसी तरह जो अमाउंट पहले कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा करोगे अब, तो एक तरीके से आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है। तो ये आपकी जो बैकबोन होती है जीडीपी ग्रोथ,
उसको ये एक स्ट्रेंथन करता है ये। तो पिछले जो लास्ट टॉपिक था उससे रिलेटेड एक और आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। जैसे आप ये देखें, हमारा जो लास्ट टॉपिक था इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इनसे रिलेटेड एक टिप है मेरे पास आपके लिए, जो है कि अगर आप मेनली देखें ना इन दोनों गुड्स को, ये बेसिकली आपका एंड यूज़ क्या होता है उस पर बेस्ड है। मतलब आपका फाइनल यूज़ क्या है। इसका फाइनल यूज़ मतलब इंटरमीडिएट गुड्स का फाइनल यूज़ एक रॉ मटेरियल या तो रीसोल्ड आइटम की तरह है, और फाइनल गुड्स का जो एंड यूज़ है वो एक कंज्यूमर गुड की तरह है। तो मतलब अगर आप एंड यूज़ पे फोकस करें तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का जो मेन फोकस है वो ये नहीं है। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का मेन फोकस ये है कि वो काम किसके आते हैं। कंजम्पशन गुड्स कंज्यूमर के काम आते हैं और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर के। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफ्रेंशिएट करना हो तो मेन पॉइंट है एंड यूज़, और अगर आपको कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफ्रेंशिएट करना हो तो मेन पॉइंट है वो किसके लिए बनते हैं। जैसे एक कंज्यूमर के लिए बनता है, एक प्रोड्यूसर के लिए। सो गाइज, अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर मैं आपको कहूँ कि कंजम्पशन गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके एग्रीगेट्स भी होते हैं इकॉनमी में, तो आप कंफ्यूज होना चालू हो जाएंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कंज्यूमर कौन कौन होते हैं। पहले कंज्यूमर जो मैंने आपको बताया वो होते हैं हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स मतलब जो नॉर्मल कंज्यूमर्स की एक कम्युनिटी होती है, मतलब सारे डोमेस्टिक यूज़र्स, वो होते हैं हाउस होल्ड्स। अब दूसरे वो होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आर्मी के लिए गुड्स कंज्यूम करती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए गुड कंज्यूम करती है, तो वो भी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आती है। और थर्ड होते हैं नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स, जो चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए, एनजीओज में आपको बच्चों की हेल्प के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस कर कंज्यूम करते हैं और दूसरों को देते हैं, वो होते हैं नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स। अब मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ कि कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, क्योंकि ये जो एग्रीगेट वर्ड है ये इतना मुश्किल नहीं है। एग्रीगेट होता है एक एस्टिमेशन कंज्यूमर एक्सपेंसेस का। अगर आप इन तीनों के कंज्यूमर एक्सपेंसेस एक इकॉनमी में प्लस करो तो वही होता है एग्रीगेट कंज्यूमर एक्सपेंस, मतलब कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वैसे तो बहुत इजी होता है, लेकिन बुक्स में ये बहुत हाई फाई लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसलिए बच्चों को आ जाए। लेकिन मेनली अगर आप फोकस करें तो एक इजी टॉपिक है। मतलब अगर आप देखें तो एक हाउस होल्ड कंज्यूमर होता है, एक गवर्नमेंट कंज्यूमर होती है और एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट। अगर हम इन तीनों के कंजम्पशन को प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक इकॉनमी का कंज्यूमर एक्सपेंस। सो गाइस, मेरे को लगता है कि आपको यहाँ तक वीडियो में शायद सब समझ आ गया होगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को बजा देंगे, जिससे आपके पास मेरा सारा नया कंटेंट आता रहे, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अब वीडियोस लगातार अपलोड करता रहूँगा। इस टॉपिक पे 3 वीडियो आएंगी, फिर अगले चैप्टर पे, और ऐसे मैं पूरा 12th का कोर्स करवाता जाऊँगा। और मैं एक टीचर की तरह नहीं, आपके दोस्त की तरह कोर्स करवाऊँगा, तो ये आपके लिए एक ईजी चीज़ होगी कि आपको जल्दी आ जाएगा और आपको कोई मुश्किलें नहीं होंगी। आप कमेंट सेक्शन में जो पूछना चाहे पूछें, आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बताएं, मैं अपने में सुधार लाऊँ, और किस तरह मैं आप लोगों को और हेल्प कर सकता हूँ आप मेरे को ये भी बताएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।